Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study image formation by mirror. Now start the lecture and understand what is mirror. See, the smooth polished surface that reflects almost all of the light is known as mirror, and mirror works on the principle of reflection of light. On the basis of this smooth polished surface, mirror is of three types, right? First is plane mirror, then spherical mirror and parabolic mirror. In the previous lecture we have studied plane mirror as well as parabolic mirror. For revision, I would like to tell what is parabolic mirror. See, if smooth, right? See, if smooth polished surface is parabolic, then this is known as parabolic mirror, right? And parabolic mirror is used in optical instruments or optical devices, right? So if smooth polished surface is parabolic, then this would be known as parabolic mirror. और parabolic जो mirror है, this mirror is used in optical devices. For an example, telescope. Next is plane mirror. What is plane mirror? See, if polished smooth surface, if smooth polished surface is plane, right, in this way. So if smooth polished surface is plane, then this mirror is known as plane mirror. And plane mirror is asked, may be asked as a 5-marker question in the examination. Therefore you need to prepare what is plane mirror and what are the characteristics of the image formed by plane mirror, right? So if this question is asked in the examination, then at first we will write the definition. If smooth polished surface is plane, then this is known as plane mirror. Now the characteristics of image formed by plane mirror. The first is image formed by plane mirror is always virtual, right? Virtual and erect. The first is, so image formed by plane mirror is always virtual and erect. Second, of equal size, right? Which means ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है उतनी ही हाइट किसकी होती है, इमेज की हाइट होती है, राइट? देन सेम डिस्टेंस, विच मीन्स ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट? तो प्लेन मिरर के सामने द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, राइट? तो उसकी जो इमेज होती है वो समान डिस्टेंस पर बनती है, कहां पर, मिरर के बिहाइंड द मिरर. तो जितनी दूरी पर, राइट, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है मिरर के सामने, मिरर के पीछे ही उतनी ही दूरी पर जो है क्या बनती है, इमेज बनती है. एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, दिस मिरर इज लेटरल, राइट? दिस मिरर इज लेटरल इनवर्स, राइट? लेटरल इनवर्स. और लेटरल इनवर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, राइट? कि जो एम्बुलेंस होता है जैसे AMBU, तो इसको कैसे लिखते हैं, राइट? इसको इस तरीके से लिखा जाता है AMBULANC. तो मैंने ये आपको शॉर्ट में समझाया है, राइट? तो लेटरल इनवर्स होती है. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसके लिए आपको याद रखना ही है. तो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज ऑफ इक्वल साइज, राइट? और उतनी दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर या जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है. फोर्थ क्या हो जाएगा कि जो इमेज होती है वो लेटरल इनवर्स होती है, विच मीन्स इमेज में जो दायां है वो बायां हो जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है. तो इन दिस वे वी हैव आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन मिरर, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बहुत ही कम समय में बट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन और बहुत ही अच्छे से समझ लिया. नाउ वी विल स्टडी स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सी, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल और कर्व्ड, देन दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. कोई सा भी मिरर हो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल और कर्व्ड, देन दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. और स्फेरिकल मिरर जो है वो लार्ज स्फीयर का ही क्या होता है, भाग होता है. अब जो लार्ज स्फीयर का जो भाग है उसको किस तरफ पॉलिश करते हैं, उस वजह से स्फेरिकल मिरर इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर, देन सेकेंड इज कॉनकेव मिरर.
right? See, if the portion of large sphere is polished inward side, for an example, in this way, then this mirror is known as concave mirror. And if the portion of large sphere is polished outward, right, then this is known as convex mirror. So this is convex mirror and this is concave mirror. And we have to prepare every mirror for 5 marker as well as 11 marker question. The question may be asked in the examination as 5 marker question. What is concave mirror? What are the characteristics of image formed by concave mirror? Or what is convex mirror? What are the characteristics of image formed by convex mirror, right? So now at first we will study concave mirror, then we will study convex mirror. So first is concave mirror. See, if the reflecting surface of spherical mirror is curved inward, then this is known as concave mirror. For an example, this is reflecting surface और ये reflecting surface क्या है, curved है और कहाँ की ओर है, inwards है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है concave mirror. तो simple definition, if the reflecting surface of a spherical mirror is curved inward, then this mirror is known as concave mirror. Now we will study image formed by concave mirror. So यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं उसको हम 6 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. अब ये हमारे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा, राइट, कि वी हैव टू रिमेंबर एवरी 6 सिचुएशन. और यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन वेयर वुड बी द पोजीशन या व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर. या अगर पूछा जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वेयर वुड बी द पोजीशन ऑफ इमेज. तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर के जो 6 सिचुएशन है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, राइट. दीज में बी आस्क्ड एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन और ये 11 मार्क्स में भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो इफ 11 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, देन वो कॉनकेव मिरर से ही पूछा जाएगा. क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड हाउ या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर. तो जब कॉनकेव मिरर की जो इमेज है उनकी जब हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे या सिचुएशन को पढ़ेंगे तो ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है. सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स, तो उसको ही क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है. और कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं उसकी कितनी पोजीशन होती हैं, 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड 6, या जिसको A B C D E और F हो जाएगा. बट बिफोर ड्रॉविंग द इमेज, बिफोर ड्रॉविंग रे डायग्राम, मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहूंगा, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स वी कैन ड्रॉ अ रे डायग्राम. द फर्स्ट इज, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज कॉनकेव मिरर. अब द सेंटर ऑफ द reflecting surface, the center of the reflecting surface is known as pole, so this would be pole of mirror. Now ये जो मिरर है, ये जिस भी लार्ज स्पेयर का क्या होता है, पोर्शन होता है, उस लार्ज स्पेयर के सेंटर को ही क्या कहा जाता है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पर, राइट. अब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जहां से होकर जाती है वही क्या कहलाता है, उसका फोकस कहलाता है. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा. अब यहाँ पर जो रे डायग्राम है, राइट, रे डायग्राम कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको 3 रूल बताना चाहूंगा. सबसे पहला, इफ अ रे इज कमिंग राइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और वो इफ रे इज कमिंग या रे इज इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर कोई रे
किसी भी मिरर पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है, फोकस से होकर ही जाती है, राइट। तो चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, डजंट मैटर, यदि रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में हमेशा कहां से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड, तो आप शॉर्ट में याद रखें और इसको आपके जो नोट्स हैं उसमें आप लिख लें। सो इसको साइन के माध्यम से, एक मिनट, ये स्पेलिंग गलत हो रही है, राइट। तो पहला रूल क्या हो जाएगा यहां पर, आप तो सीधा याद रखिए, ये अगर इस तरीके से पैरेलल होगी, किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसी के समान है, और वो पॉइंट क्या है कि इफ रे, अगर जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से होकर जाने वाली जो रे है वो फोकस से होकर इंसिडेंट करती है, बीच में से आप समझिए, यहां पर ये जो रे है, ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो ये फोकस से होकर जाएगी। अब मैंने कहा कि ये कोई रे जिसका इंसिडेंट हो रहा है, और ये रे कहां से पास हो रही है, फोकस एफ से, तो यदि कोई रे फोकस से होकर उसका इंसिडेंट होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। दोनों डायग्राम समझ में आए, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होकर जाएगी, और अगर किसी रे का फोकस से होकर इंसिडेंट होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होकर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दूसरा रूल हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या हो जाएगा कि दिस इज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में यदि किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई, जैसे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वह उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दीज आर द 3 रूल्स, राइट। आई वुड लाइक टू रिवाइज अगेन सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वह रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि यदि कोई रे फोकस एफ से होती हुई उसका इंसिडेंट होता है तो वह जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई क्या होती है, इंसिडेंट करती है, तो वह उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो दीज आर द 3 रूल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 रूल्स यू हैव टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई डिडंट यूज द इमेजेस, राइट, डाउनलोडेड बाय इंटरनेट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रे डायग्राम बनाना सीखें, क्योंकि एग्जाम में अगर इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है देन एनी हाउ यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, बिकॉज विदाउट ड्रॉइंग अ डायग्राम you cannot explain the image formation by mirror, therefore you need to get ready how to draw a diagram। और यदि आप इस रे डायग्राम को बना देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग में क्वालिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो चलिए पहले इस सिचुएशन को पढ़ते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, राइट, दिस इज कॉनकेव मिरर, और ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। चलिए अब जैसे हमने मान लिया कि दिस इज ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम मिरर, तो उसको कहा जाता है इंफिनिटी पर। तो यदि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इंफिनिटी पर रखा है तो उसका जो इमेज है वो कहां बनेगा वो समझते हैं। चलिए, तो यहां पर ये रे आएगी और ये यहां से इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये रे इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है, राइट। डायग्राम बनाने समय हमको 2-3 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारी इमेज है ये बड़ी बन गई है, तो
मैं तो हालांकि यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, बट आपको ये क्या करना है, इसके बारे में हम आपकी जो कॉपी होगी उसमें 3 पैरेलल लाइन होंगी, तो आपको इस्तेमाल करना। आपकी कॉपी में क्या होंगी, इस तरीके से पैरेलल लाइंस जो है देखने को मिलेंगी। तो उन पैरेलल लाइंस के तहत आप जो जितनी भी रेज हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो जो इमेज है उसको हमको ऐसे रखना पड़ेगा ताकि एक जो है रे इसके ऊपर से जा रही और एक यहाँ से, ये इमेज का साइज हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने जो है 3 रूल्स पढ़े थे। ये रे जो है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस एफ से। ये देखिए, तो ये फोकस एफ से होकर इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ, राइट। फिर ये भी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो ये भी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब एग्जाम में हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर फोकस को पहले ही पॉइंट आउट कर लेंगे तो एग्जाम में ड्रॉ करना कठिन होता है, इसलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें। फिर हमको पता है कि यहाँ पर फोकस आएगा और फोकस से डबल डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या आएगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो आपका डायग्राम बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एफ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रिफ्लेक्टेड रेस मीट और इंटरसेक्ट, तो वहां पर कौन सी रियल इमेज फॉर्म होती है। और रियल इमेज कैसी होती है, तो रियल इमेज होती है इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, राइट। तो यहां पर ये जो है रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रेज हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये कैसी है, इन्वर्टेड है। तीसरी चीज, इसका साइज आप देख रहे होंगे कैसा है, वेरी स्मॉल है, या ये क्या है, पॉइंट साइज्ड है। तो इमेज का जो साइज है वो वेरी स्मॉल होगा या पॉइंट साइज्ड होगा, और इमेज कहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, एट फोकस पे। चलिए, अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं कि अगर हम इमेज को, राइट, सॉरी, if B place an object beyond C, for an example this is concave mirror। अब concave mirror में अब हम यहां पर जो है ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, बियॉन्ड C, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा। चलिए, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है इमेज आएगी। चलिए, ये जो है इस तरीके से ये रे आ रही, और हमने देखा था कि अगर ये पैरेलल है तो ये कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी चीज, अब हमने यहां पर एक रूल और पढ़ा था कि अगर कोई इमेज कहां से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये फोकस से होकर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई क्या है, इंसिडेंट कर रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर डायग्राम बनेगा। लेकिन ये डायग्राम कैसा होगा, ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, इस तरीके से इन्वर्टेड होगी, विच मीन्स यदि ये A और B है तो यहां पर A डैश हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ B प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट or between infinity and center of curvature, or we can write beyond C, then image कहाँ पर फॉर्म होगी, between center of curvature and focus, right। जो इमेज है उसका साइज कैसा होगा, right, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस जो है इंटरसेक्ट या मीट कर रही है, और कैसी बनेगी, ये इन्वर्टेड होगी। नाउ थर्ड सिचुएशन, इफ बी प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहां पर उसका जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको साथ साथ इमेज ड्रॉ करना भी सीखना है। जैसे ये अगर हमने जैसे मान लिया ये क्या हो जाएगी, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट से एक इस तरीके से रे होगी,
तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, उसका जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी जो इमेज है, एक मिनट, चलिए, तो हमें इतना तो पता है कि जो डायग्राम है कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट का जो, देखिए ये जो डायग्राम है ये देखने में कठिन होती है, इनको बनाने का तरीका होता है। अगर आप पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो हो सकता है आपसे डायग्राम ना बने, इसीलिए सबसे शुरू में आप इमेज को रखिए, ये इसकी जस्ट क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब हमको केवल और केवल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी जो इस पॉइंट से इसको क्या करे, मैच करे, तो आपका डायग्राम क्या होगा, अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है 2-3 बार जो है डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी टाइम जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही डायग्राम बन गया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये ए और क्या हो जाएगा, बी। ये ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब कोई भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात में वो रे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। तो ये फोकस एफ से होती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि यदि कोई रे फोकस से होकर इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये दोनों रेस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर, विच मीन्स इमेज फॉर्म कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, राइट। और जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पर मीट कर रही हैं। बट ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये ए डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइदर ये 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम जो है कॉनकेव मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को, कॉनकेव मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि उसकी जो इमेज है वो उसी के इक्वल साइज की बने। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट कॉनकेव मिरर के सामने कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और उसका साइज क्या होता है, इक्वल साइज होता है, विच मीन्स दैट सेम साइज, विच इज जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज जो है इमेज का होता है, रियल होती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। नाउ फोर्थ। नाउ अब देखिए, आप एक चीज समझ गए होंगे कि हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे रखा, फिर उसके बाद में हमने उसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, और अब हमने उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में रखेंगे, फोकस में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 पॉइंट है। एक हो जाएगा क्या, पोल, उसके बाद में क्या आता है, फोकस, उसके बाद में क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद में क्या आता है, इनविटी। तो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, अब फिर हमने तीसरी कंडीशन पे सी पे रखा। तो अब हम ये जो सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस एफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं। तो पहली तो बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्शन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस एफ से होती हुई। दूसरा, इसकी जो रे है वो कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से। इसीलिए ये जो मेन एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये मेन एक्सिस, जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इसका क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात में ये कहाँ से होकर गई, फोकस एफ से। फिर जब ये फोकस एफ से होकर इसका क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो गई, इसका जो है रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब इमेज कहां पर फॉर्म होगी, यहां पर फॉर्म होगी इस तरीके से। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इमेज का जो साइज है ए बी, उससे ज्यादा साइज किसका है, ए डैश बी डैश का है, राइट। तो अगर आप देखें
तो सबसे शुरू में जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो उसका वेरी स्मॉल और पॉइंट साइज क्या बना था, इमेज बनी थी। कहां पर, फोकस पर। अब जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास लेकर आएंगे, उसका जो इमेज है वो फोकस से जो है दूर क्या होगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो जो इमेज है वो फोकस पर बनी। फिर जब हमने बियॉन्ड सी रखा तो फोकस, जो इमेज है वो फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट को रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। अब फोर्थ स्टेज क्या है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को सी एवं एफ के बीच में रखा तो उसकी जो इमेज है वो बियॉन्ड क्या बनेगी, सी बनेगी। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम कह सकते हैं कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। और साथ ही साथ अब जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पर, फिफ्थ। अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, यहां पर फोकस पर रखते हैं, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा यहां पर P। अब देखिए जैसे हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां पर F हो जाएगा। तो यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अब यदि कहां पर रखते हैं, फोकस F पर, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि फोकस पर है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो पहली तो जो है वही नियम है कि अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। तो ये उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, जैसे अब ये जो रे है ये इस तरीके से जाएगी, एक मिनट, चलिए ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, राइट। हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमको दिखने में ऐसी लगे कि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा मिरर का जो है डायग्राम हमको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अगर एग्जाम में भी होता है तो हमारा डायग्राम दिखने में सही दिखे, राइट। ये जो लाइन है ना ये पैरेलल दिखनी चाहिए, नहीं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, डायग्राम जो है वो ठीक नहीं दिखेगा। तो इसको हम ठीक करते हैं। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल दिखेगी। चलिए अब देखिए यहां पर दोनों के दोनों जो नियम है उनका पालन है। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। तो ये फोकस एफ से होकर जो है जा रही है। दूसरा, अगर कोई भी रे का इंसिडेंट कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट करती है तो वो है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। और दोनों ही जो रेस हैं आप देखेंगे ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रही। तो मुझे ये बताइए ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या ये मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और जो भी इमेज होगी वो एक्सेसिव क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, एक्सेसिव मैग्नीफाइड होगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और साथ ही साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड। अब जो छठवीं स्टेज है ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कॉनकेव मिरर है उसकी ये दोनों स्टेज 5 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। ये भी 5 मार्कर में पूछी जा सकती है और छठवीं भी 5 मार्कर में पूछी जा सकती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट, दिस इज P पोल।
अब देखिए हमने मान लिया कि दिस इज फोकस F, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C. नाउ वी आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस F एंड P. तो ये दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल. नाउ वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F. तो पहला रूल तो वही है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, इंसिडेंट होगा, तो वो कहां से होकर जाती है, वो जाती है फोकस F से होकर. तो ये इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये सॉरी इस तरीके से इसका इंसिडेंट होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. चलिए अब दूसरा यहां पर बनेगा डायग्राम कुछ इस तरीके से. अब देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका इंसिडेंट हो रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. विच मीन्स अगर आप देखें तो एक रे का रिफ्लेक्शन जो है इस तरीके से हो रहा है इस डायरेक्शन में ये, और दूसरी रे भी इसी डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. अब ये चूंकि पैरेलल नहीं है तो इसीलिए ये मिरर के लेफ्ट साइड तो कभी भी मीट नहीं होंगी या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो यहाँ तो इमेज का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है. बट यदि हम इन दोनों को इधर पीछे की ओर बढ़ाएं तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कि वहां पर इमेज क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है. तो जब कभी भी हम जो रेस हैं उनको दाहिनी ओर बढ़ाते तो हमेशा डैश का यूज करते. तो ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा. अब देखिए ये दोनों जब हम इनको पीछे बैक करेंगे तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहीं पर क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगी. और जो वर्चुअल इमेज होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है उसको भी डैश से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश. तो ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज वर्चुअल होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी. मतलब कॉनकेव मिरर में देयर इज ओनली वन कंडीशन कि जहां पर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और कैसी होती है, इरेक्ट होती है. राइट. तो ये पूरी 6 की 6 टेबल है. अब मैं चाहता तो आपसे बोलता कि ये आप टेबल को याद कर लीजिए और एग्जाम में लिखाइए, बट मैंने क्या किया है कि विदाउट यूजिंग इमेज डाउनलोडेड बाय इंटरनेट मैंने आपको यहां पर बनाना सिखाया है ताकि आप भी ये डायग्राम बनाना सीख जाएं. बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी कि 3 मार्कर से तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाएगा. किस तरीके से पूछा जाएगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ इमेज. तो पोजीशन कहां होगी, बियॉन्ड सी होगी. या व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज. तो इमेज की जो साइज है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड होगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज बनता है फोकस पर कैसा होता है, पॉइंट साइज जो होता है वेरी स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड बनता है. फिर अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो फोकस एवं सी के बीच में क्या बनता है, स्मॉल साइज की इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो वहीं पर उसका क्या बनता है, इमेज बनती है, सेम साइज की होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है. इसको हमने समझा है. यदि फोकस पर रखेंगे तो उल्टी हो जाएगी, कहाँ, इन्फिनिटी पर जो है इमेज बनेगी, एक्सेसिव मैग्नीफाइड होगी, रियल और इन्वर्टेड. तो इसमें से जो C है और F है, these may be asked as a 5 marker question. Therefore you need to remember these situation as well. When we will place an image between P and F, then the image would be formed behind the mirror. कहाँ पर बनेगी, behind the mirror. और behind the mirror बनेगी तो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी. राइट. लेट्स रिवाइज सो दैट यू कुड रिवाइज द डायग्राम एज वेल. Right. So this is the first diagram when we will place object at infinity. So when we will place object at infinity तो उसका डायग्राम या उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, फोकस F पर. पॉइंट साइज जो होगी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. जब हम बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका
इमेज, उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, एफ एंड सी के बीच में बनेगी, स्मॉल साइज की होगी, साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड होगी। व्हेन वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा, राइट। इमेज वुड बी रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। फिर फोर्थ, जब हम C और F के बीच में रखेंगे तो जैसे C पर जब रखा था तो इमेज भी यहीं पर बनी थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं, जो इमेज है वो फोकस से दूर होती जा रही। सो व्हेन वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, center of curvature and focus, then image would be formed beyond C, right? जो साइज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। व्हेन वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, एक्सेसिव मैग्नीफाइड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल देन इमेज वुड बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये राइट, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है दिस साइड एंड दिस इज द बिहाइंड द मिरर। साथ ही साथ दिस वुड बी द फर्स्ट केस कि इसमें जो मिरर्स, जो रिफ्लेक्टेड रेस है, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दीज आर अपीयर टू इंटरसेक्ट हियर, देयरफॉर बिहाइंड द मिरर बनेगा और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, राइट। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस में बी आस्क्ड एज अ एग्जामिनेशन, राइट। तो एक पावरफुल जो पैरेलल बीम होती है, राइट, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम, राइट, कॉनकेव जो मिरर है उसका यूज किया जाता है टॉर्चेस में, इस सर्च लाइट्स में और साथ ही साथ व्हीकल्स के हेडलाइट्स में, राइट। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, यहां पर व्हीकल्स हो जाएगा, तो ये व्हीकल्स हो जाएंगे। तो इन व्हीकल्स में यहां पर जो हेडलाइट्स लगी होती है, राइट, और इन हेडलाइट से एक पैरेलल पावरफुल पैरेलल बीम को प्राप्त करने के लिए, तो टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम, टॉर्च में, राइट, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में और सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। सेकेंड, जो सेविंग मिरर्स होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। थर्ड इज, जो कॉनकेव मिरर होता है उससे जो चौथी और पांचवी सिचुएशन है, राइट, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो बिटवीन प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और एट फोकस, तो उसकी जो इमेज है वो क्या होती है, लार्ज इमेज बनती है। तो टीथ जो डेंटिस्ट होते हैं वो कैविटी को चेक करने के लिए या टीथ को चेक करने के लिए इसी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एंड लास्ट, जो सोलर फर्नेस होती है, राइट, सोलर फर्नेस में भी जो सन रेज होती है उनको कंसंट्रेट करने के लिए कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड the concave mirror very comprehensively, as well as I have made you understand how to draw a diagram. Now we will study the convex mirror, right. What is the definition of convex mirror? See, if the reflecting surface is curved outward, then the mirror is known as convex mirror. This is the example of convex mirror, right. So if reflecting surface is curved outward, then this mirror is known as convex mirror. तो ये convex mirror का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायग्राम हो जाएगा। अब convex mirror से जो इमेज बनती है उसकी कितनी सिचुएशन होती हैं, दो होती हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, when we put an object at infinity, right, so this is convex mirror। अब ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P। अब इसका फोकस भी इसी तरफ होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, यही होगा, तो ये C हो जाएगा। अब देखिए, हमेशा आप एक चीज को याद रखें कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या तो लेफ्ट साइड रखा जाता है या हम उसी को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यदि हम यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फॉर एन एग्जांपल दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, तो इस ऑब्जेक्ट को
कहाँ पर हम रख रहे हैं, राइट, लेफ्ट साइड रख रहे हैं। अब जब लेफ्ट साइड रखेंगे हम यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये इससे इमेज चलिए, तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वो वही है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे इंसिडेंट करेगी तो वह हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाती है, राइट, इस तरीके से। अब ये जब यहां पर इंसिडेंट होगा तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों रेस हैं, ये क्या कभी ये रेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, क्या नहीं करेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो लेफ्ट साइड तो जो है इमेज फॉर्म नहीं होगी, बट अगर हम इन रेस को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमको फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, राइट, अपीयर टू क्रॉस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर एरर्स। देखिए, तो हमेशा ये जो अपीयर टू क्रॉस, उनको हमेशा डॉट लाइन से दर्शाना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस एफ। तो सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा, राइट, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो उसका जो भी उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है, और ये कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है या पॉइंट साइज जो होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है अपीयर टू बी इंटरसेक्टेड हियर, देयरफॉर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, और साथ ही साथ ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज समझिए कि जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, यहाँ पर जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये रेज अभी ऐसी रिफ्लेक्ट हुई है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, राइट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेज जो है और ज़्यादा क्या होती जाएंगी, इस तरीके से होती जाएंगी। तो जो भी इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा फोकस एवं पोल के बीच में ही बनेगी। देयरफॉर देयर आर ओनली टू सिचुएशन इन कॉन्वेक्स मिरर, राइट। जब हम यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज बनती है कहाँ पर, फोकस पर। अब हम इस इमेज को या इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, जो इमेज बनेगी, राइट, जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा फोकस एवं पी के बीच में ही होगी। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, तो ये यहाँ पर कौन सा मिरर हो जाएगा, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, अब जैसे हमने मान लेते हैं कि यहां पर हमने जो है, जैसे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते, सॉरी, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी इमेज को कहाँ पर रख रहे हैं, लेफ्ट साइड, जैसे हमने मान लिया, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया ए और बी। इस डायग्राम में भी आप इसका जो है नाम जरूर लिखें, ए और बी, तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, ए बी सीधा ही बनेगा। चलिए, तो अब ये जो है ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक रे जाएगी इस तरीके से, और वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहां से अगर हम देखें तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से, फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, इस तरीके से, राइट। अब दूसरी जो डायग्राम बनाना है वो हमको फोकस से और यहां से इस तरीके से हमको जो है रेड जो है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ी ये जो लाइन है, अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखिए अगर आपके पास में हॉल में क्या है, स्केल है, तो यू कैन यूज स्केल। स्केल से जो डायग्राम है वो आप एक ही बार में बना लेंगे, हालांकि थोड़ा सा अब आ जाएगा, इस तरीके से हमको यहाँ पर बनाना है, अभी भी थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मैंने कहा है कि कभी भी नाम हमको बाद में लिखना चाहिए।
पहले हम सीधा लाइन खींचते हैं और उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई है। चलिए, तो यहां पर देखिए, एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहां से अपीयर टू क्रॉस फ्रॉम फोकस, दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट करती है तो वह उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये रेस जो है, एक रेस आप समझिए, एक रेस जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और एक रेस यहाँ पर, तो क्या ये दोनों कहीं पर भी यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये इसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, पीछे, और इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, राइट। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट दीज रेज आर अपीयर टू मीट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो इस तरीके से इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, बिटवीन P एंड क्या होगा, F होगा। अब जैसे जैसे आप इसको यहां पर लेके आएंगे, जैसे मैंने मान लिया कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका जो इमेज है, ये जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जितने पास लेके आएंगे वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बट बनेगा हमेशा फोकस एवं पी के बीच में। सो देयर आर ओनली टू सिचुएशन इन कॉन्वेक्स मिरर, राइट। फटाफट उसका रिवीजन समझते हैं, राइट। तो जैसे यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में जब किसी ऑब्जेक्ट को, राइट, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उसका जो इमेज है वो कहां पर, फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। सेकेंड, यहां पर जो है when we keep an object between infinity and pole P, तो उसका जो इमेज होगा वो हमेशा फोकस एवं P के बीच में ही बनेगा। साइज कैसा होगा, ऑलवेज स्मॉल होगा, वर्चुअल होगा एंड साथ ही साथ कैसा होगा, इरेक्ट होगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द 6 सिचुएशन। जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो ध्यान से समझें, राइट। कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती हैं उसकी 6 कंडीशंस होती हैं, राइट। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। और वहीं जब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो ओनली 2 सिचुएशन होती है, राइट। इन्फिनिटी पर रखते हैं और इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं पर भी रख दें, जो इमेज है वो F एवं P के बीच में बनती है, राइट। सो इन this way we have studied the convex mirror या image formed by the convex mirror. Now we will study uses of convex mirror. अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें चाहे हम वस्तु को कहीं पर भी रख लें, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, उसका जो साइज होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, विच मीन्स दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन, राइट, और स्मॉलर देन क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। इसीलिए दिस मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। उसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज योर कार, राइट, यू आर सिटिंग हियर। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू मिरर हो जाएगा। अब यहां से कौन सी कार आ रही है, बाइसिकल आ रही है, तो ये जो वाइडर एरिया है इसका छोटा सी जो इमेज है वो आपको यहां पर मिलेगी, राइट। सो थ्रू रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ ट्रैफिक। तो ये जो पूरा का पूरा जो इमेज होती है, पहली चीज तो ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और साथ ही साथ ये इमेज कैसी होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। इसीलिए हम यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा जो वाइडर एरिया देख लेते हैं, राइट। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, राइट, स्मॉल साइज की होती है, साथ ही साथ इरेक्ट इमेज होती है। इसीलिए इसका प्रयोग जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है, जो कि बिहाइंड से या पीछे से आ रहा है, उसको देखने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो बस होती है, बस में यहाँ पर जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, बट जो रियर साइड व्यू मिरर होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स्ड मिरर। सेकेंड क्या हो जाएगा कि जो बहुत ज्यादा जो जितने भी क्या होते हैं टर्न्स होते हैं, तो टर्न्स पर अब जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ब्लाइंड टर्न हो जाएगा। यहां से जैसे मैंने मान लिया कि यहां से कोई क्या है,
जो है बस जा रही है, जैसे ये क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, और यहां से भी जो है बस जा रही है। अब इस डायरेवे को यहां पर पता नहीं है कि यहां से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, यहां से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, सो देयर में बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, देयरफॉर हियर अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड सो दैट दिस में गेट इंफॉर्मेशन कि इस साइड से कौन आ रहा है, और इसमें से देखकर ये देख सकता है कि यहां से कौन सा आ रहा है, राइट। तो जो ब्लाइंड टेंट्स ऑफ द रोड्स होते हैं, ओवर देयर कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, right? So in this way we have studied concave mirror, convex mirror, right? तो हमारे सिलेबस में है इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन वाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से भी इमेज फॉर्म की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी समझ लिए हैं। फिर कॉनकेव मिरर की जो छह स्थितियां हैं वो हमने बहुत अच्छे से समझी हैं, राइट। और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर की दो जो स्थितियां हैं उनको बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। सो वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन वेरी डेप्थ, राइट। अब हम यहाँ पर जो है मिरर इक्वेशन और समझते हैं। देयर में बी चांसेस दैट 3 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मिरर इक्वेशन क्या होता है। थ्रू मिरर इक्वेशन वी कैन गेट द डिटेल्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट। सो जैसे हम मान लेते हैं कि इन स्फेरिकल मिरर वेदर दिस इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोल इज नोन एज डिस्टेंस u। तो u का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर ये, राइट, द डिस्टेंस हियर टू हियर, पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको ही क्या कहा जाता है, u कहा जाता है, राइट। तो इन मिरर फॉर्मूला, राइट, मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच shows the relationship between u, v and f, where u is the distance of object, v is the distance of image and f is the focal length of the mirror, right। तो what is u? u के बारे में हम समझ चुके हैं, right। the distance of object from pole is known as u and the distance of image from pole is known as v। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, v हो जाएगा। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट, फ्रॉम द पोल इज नोन एज, सॉरी यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज नोन एज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको v से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके साथ ही जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड P पोल इज नोन एज फोकस F। अब इन तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का क्या हो जाएगा, 1/u। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ, राइट, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/f equals to 1/v plus 1/u. Now magnification. What is magnification? Magnification is the increase in the size produced by spherical mirror with respect to object. Right? तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका कितना बड़ा, जैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जो है इमेज इसकी बन सकती है, या हो सकता है बिल्कुल इतनी सी क्या बन सकती है, इमेज बन सकती है। तो मैग्निफिकेशन से, थ्रू मैग्निफिकेशन वी कैन फाइंड आउट द साइज और हाइट ऑफ द इमेज। सो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज in the image size produced by spherical mirrors with respect to objects, right? तो magnification is the increase in the image size produced by spherical mirror with respect to object। अब इसको कैसे find out करते हैं, तो m equals to h dash, m is equals to h dash upon क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। Here h dash is the height of image and h is the height of object। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर, अब जैसे मानिए सपोज, लेट्स सपोज देयर इज ए 7 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर पेंसिल है। अब पेंसिल है तो ये हाइट किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, और उसकी जो इमेज बनती है वो 14 सेंटीमीटर की बनती है।
तो m कितना होगा, m इक्वल्स टू ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और पेंसिल की साइज कितनी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्रॉस करेगी तो कितना आएगा 2। तो हमेशा ध्यान रखना इफ m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये है कि जितना साइज का या जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज किसका होता है, इमेज का होता है। इफ m इक्वल्स टू 1 विच मीन्स दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड हो जाएगा यहां पर कि यदि यहां पर m की वैल्यू राइट m इज ग्रेटर देन 1, जैसे m की वैल्यू यहां पर जब क्रॉस करेंगे तो कितनी आएगी 2, तो यदि m की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वहां पर जो इमेज साइज होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, मतलब इमेज कैसी बनती है, लार्ज बनती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ m इज लेस देन 1, जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी पेंसिल है, जैसे पेंसिल की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 4y क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है कि m यदि वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1 देन जो इमेज साइज है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, राइट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी m की वैल्यू निकालते हैं, अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन m h डैश h एंड u एंड v। तो ये फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है राइट v u h डैश एंड h में। अब अगर यहां पर माइनस की वैल्यू आती है, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन, देन ये इंडिकेशन होता है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। एंड इफ पॉजिटिव साइन, अगर हम यहाँ पर v अपॉन u करके आंसर निकालते हैं वो पॉजिटिव साइन होता है, तो दिस शोज द इमेज इज वर्चुअल। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड मैग्निफिकेशन एज वेल। सो वी हैव स्टडीड image formation by mirror in depth, right? Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.